nerve, radial nerve, musculocutaneous nerve. Radial nerve. Motor supply to diaphragm is phrenic nerve, vagus nerve, esophagus, recurrent laryngeal nerve, brachiocephalic trunk. Phrenic. Causes of muffled sound occur in old age, child, mitral stenosis, aortic stenosis. Old age. Muscle that connect two bones via ligament, tendon, joint, cartilage, fasciculus. Tendon. Norepinephrine produced from raphe nucleus cellulus, nucleus basalis, substantia nigra. ठीक है. Patient with hypothyroidism may have increased cholesterol, increased HDL, increased LDL, increased free fatty acids. Brush border of PCT has tightly packed cilia, tightly packed filaments, microvilli, dense luminal membrane, intermediate filament. Pannus is a feature of rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, osteoarthritis, Reiter syndrome. In normal distribution curve, mean is greater than mode, mode is greater than mean, mean is equal to mode या तीनों equal होते हैं mean, mode and median. All are equal. Which one of the following structure is behind the ovarian fossa? Ureter, internal iliac, external iliac and obturator. Ureter. Hyperacute transplant rejection occurs due to preformed antibodies, CD8 cells, CD4 cells, T cells. Preformed antibodies. Psychological stress is an example of economic crisis, developmental crisis, social crisis, noise. Economical crisis. Cabergoline mechanism of action is B1 agonist, B2 agonist, D1 agonist, D2 agonist. D2. Hypokalemia associated with muscle wasting, spasticity, flaccidity, hyperreflexia. Hyperkalemia, flaccidity. NMYC mutation is seen in neuroblastoma, nephroblastoma, Wilms tumor, retinoblastoma, glioblastoma. Neuro. A granular cerebral cortex is present in auditory area, gustatory area, primary motor area, secondary visual area, somatic sensory area. ठीक है. Side effect of anti-hyperlipidemic drug is nausea, rash, GIT disturbance, sedation. Side effect of morphine is diarrhea, abdominal pain, tachypnea, mydriasis, bradypnea and meiosis. Side effect क्या आते हैं? ठीक है. The part of the brain responsible for anxiety, emotion and rage is amygdala, lateral thalamic nucleus, hippocampus, medial thalamic nucleus. Ovulation occurs due to sudden increase in progesterone inhibiting LH estrogen. LH surge आता है. कीटोजेनिक अमाइनो एसिड. अच्छा, ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसके एमसीक्यू सारे आते हैं. कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? लाइसिन एंड ल्यूसिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन एंड आइसोल्यूसिन. ठीक है. अच्छा बताएं कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट या हिस्टडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन. अच्छा, जो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हिस्टडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. ठीक है. डीएनए के साथ कौन सा अमाइनो एसिड अटैच होता है? डीएनए हैज हिस्टडीन. ठीक है. आईजीई रिसेप्टर्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? मेगाकैरियोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स. बेसोफिल्स. लेसर कर्वेचर ब्लड सप्लाई इज सिस्टिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, एओर्टा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वाला पेपर स्टार्ट करें. 5 वाले में किसी को किसी एमसीक्यूज में इशू तो नहीं है? पेपर 5 में 77. अच्छा, इसमें है कि लेंस विथ फोकल लेंथ ऑफ 0.02 मीटर फोकसिंग एट 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस. ठीक है. तो इसमें ना बेसिकली हमने फोकल लेंथ डिवाइड करनी होती है. ठीक है. तो इसकी नॉर्मली ना 500 डायोप्टर्स, मतलब इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना 1 के ऊपर 0.002 m को. ठीक है. तो आपको इस पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 500 डायोप्टर्स.
तो इसका जो चार्ली ऑप्शन है ना उसमें दिया हुआ है कि ग्रेटर देन 100, तो आपके पास आंसर यानी कि 100 से ऊपर आती है लेंथ, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन है, ये 1 को डिवाइड करना है आपने फोकल लेंथ के ऊपर, तो फोकल लेंथ कितनी है 0.002 मीटर। जब आप इसे 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 500 डायोप्टर्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पेज नंबर 466 और पेपर नंबर 6 MCQ नंबर 1। प्लेयर रिवॉर्ड सेंटर फियर एंड एडिक्शन, इसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस एंड सेप्टल न्यूक्लियस, ठीक है। सेकेंड MCQ है अल्नर नर्व इंजर्ड एट मीडियल एपिकोंडाइल, अगर वो मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर डैमेज हो जाए तो उसके ऊपर कहाँ पे आ रहा होता है, हाइपोथिनार वेस्टिंग आ जाती है, ठीक है। और अगर रिस्ट लेवल के ऊपर इंजरी आए तो क्या बन जाता है, अल्नर नर्व, अगर रिस्ट तो क्लॉ हैंड। कॉमन पेरोनियल नर्व अगर डैमेज हो जाए, कब डैमेज होती है ये, नेक ऑफ फिबुला पे अगर डैमेज हो जाए तो आपको साइन क्या आएगा, कॉमन पेरोनियल नर्व अगर नेक ऑफ फिबुला के ऊपर इसका फ्रैक्चर, फुट ड्रॉप, वेरी गुड। जस्टिस मेडिकल एथिक्स में क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। 5 चाइल्ड इज ओनली फास्ट फूड, जब आप सिर्फ फास्ट फूड खाते हैं, MCP की वैल्यू रेज्ड है, SP कम है तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाएगी। 6 में बोन जर्की डिजीज में कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, G6P की। 7 18 जब भी गर्ल की बात की जाए, ठीक है, और उसे मेगा कैरियोसाइट्स आ रहे हो तो आपने क्या चूज करना है, ITP का सिनेरियो होता है। 8 7 मंथ प्रेग्नेंट लेडी है, क्रोनिक ITP है, पहले वो स्टीरॉइड्स फुल डोज ले रही थी लेकिन अभी भी उसकी ठीक नहीं हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट आप सूटेबल स्टेप क्या देंगे, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है तो आप स्प्लीनेक्टमी नहीं कर सकते अभी। फिंगर इंजरी विच एक्टिवेट्स कार्निन एंड आल्सो कोआगुलेशन बाय विच फैक्टर, कौन सा करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेट होगा ना, इंट्रिंसिक फैक्टर कौन एक्टिवेट करवाता है, फैक्टर 12, उसका नेम क्या है, हैगमैन फैक्टर। हार्मोन रिलीज फ्रॉम इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब, हाइपोथैलेमस एंड लंग एंड प्लेसेंटा, कौन सा रिलीज होता है, प्रो ओपियोमेलानोकॉर्टिन, POMC। फोबिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फोबिया के अंदर जो रेटिना के अंदर जो फोबिया होता है ना सेंटर में, उसमें क्या होता है, उस पॉइंट पे विजुअल एक्विटी हाईएस्ट होती है। ए पेशेंट हैज़ इंक्रीज्ड प्रीलोड एंड डायस्टोलिक मर्मर, तो डायस्टोलिक मर्मर में क्या आ जाएंगे, एओर्टिक रिगर्जिटेशन आ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन में बी डिजोल्व बाय ओरल ट्रीटमेंट विद, हम उसमें क्या देते हैं, कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड देते हैं। फोर्थ हार्ट साउंड इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन करता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, ठीक है। 15 कहते हैं कि ये जो 15 वाला MCQs है ना, ये मैंने आपको बताया कि जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है ना फर्स्ट एड का, उसके अपने टेबल्स लाजमी करने हैं, उन टेबल्स में से MCQs आता है, ठीक है। ग्लूटन ए गामा ग्लोबिनीमिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कौन सी इन्फेक्शन को इंक्रीज करता है, पायोजेनिक या बैक्टीरियल, इसमें बीटा सेल्स का डिफेक्ट आता है। 16 PPD tubercular skin test done to patient after 40 hours, 15 millimeter erythema is noticed, cell responsible for erythema, कौन से सेल्स होते हैं, helper T cells and macrophages। Climber at high altitude experience hypothermia on returning to base camp, adapt to cold weather by heat generation, तो सर्दियों के अंदर जो हीट जनरेट कौन करता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, और समर्स के अंदर एंटीरियर हाइपोथैलेमस आ जाएगा। अच्छा 17 ट्राइसेप रिफ्लेक्स, अगर ये इसका लीजन लॉस हो जाए तो कब किस चीज़ में डैमेज आता है, लोअर सर्वाइकल लेवल पे। टू वर्टेब्रल आर्टरीज ज्वाइन टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है। रेट्रोमैंडिबुलर वेन इज फॉर्म बाय जंक्शन ऑफ मैक्सिलरी वेन एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। A young girl complained of dryness of the nose and the palate. This would indicate a lesion of which one of the following ganglia, किस चीज़ में आता है, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन। Current flow occur in the heart to produce waves in the ECG when the heart is, जब heart partially polarized होता है and partially depolarized होता है। 23 A patient has increased heart rate, क्योंकि टेकीकार्डिया हो गया, BP उसका नॉर्मल है ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तो वो किसकी वजह से है, वो एंजाइटी की वजह से ही उसे टेकीकार्डिया हो रहा है, साइनस टेकीकार्डिया इसे कहते हैं, ये नॉर्मल ही होता है ऑलमोस्ट। इंक्रीज न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इन डिस्प्लेसिया क्या करवाता है, एबनॉर्मल DNA की प्रोडक्शन को। 25 प्रेग्नेंट लेडी विद लेबर पेन एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बट डाइड बिफोर रीचिंग टू द हॉस्पिटल, मोस्ट लाइकली क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो जाता है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल तो आपको सबको आती होंगी। विच फैक्टर रेगुलेट द 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिक आल्सिफेरोल, एग्जाम में भी आते हैं, इसमें कौन कर रहा होता है इसे रेगुलेट की बात कीजिए तो वो कैल्शियम कर रहा होता है, ठीक है।
27 पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ब्लीडिंग एंड हेमोलिटिक एनीमिया। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी में रिकरेंट और गम्स की ब्लीडिंग आती है ना। 28 कहते हैं कि पेशेंट आफ्टर आरटीए हैड सीवियर ब्लड लॉस, नो यूरिन आउटपुट इवन आफ्टर 3 days, पेशेंट फेल टू हैव यूरिन आउटपुट, क्रिएटिनिन 9.5, बायोप्सी शो कोर्टिकल नेक्रोसिस एंड सीवियर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो कॉज क्या होगी उसमें? इरिवर्सिबल इंजरी। सेरिबेलर साइंस क्यों होते हैं? सेरिबेलर साइंस के अंदर क्या आता है? हाइपोकैलीमिया। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल किसके साथ अटैच होता है? ये वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर के साथ, ठीक है। और जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल होता है वो किसके साथ अटैच होता है? पोंटोसेरिबेलर के साथ, ठीक है। 31 कहते हैं कि 38 वीक प्रेग्नेंट वुमेन विजिटेड हर फैमिली ए रिमोट एरिया। जब भी प्रेग्नेंट लेडी हो, रिमोट एरिया हो, तो उसमें कौन सा जॉन्डिस होता है? हेपेटाइटिस ई। और अगर मोस्ट कॉमन की बात की जाए तो हेपेटाइटिस में भी प्रेगनेंसी में भी विटामिन कह रही हूँ, हेपेटाइटिस ए ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर रिमोट एरिया आ जाए तो आपने क्या चूज़ करना है? हेपेटाइटिस ई, ठीक है। और मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस कौन सा होता है? मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस जिसमें डेथ हो जाती है, हेपेटाइटिस डी। अच्छा, नॉर्मली हम बात करें ना, मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, सुपर इन्फेक्शन होता है ना हेपेटाइटिस बी का, तो कौन सा होता है? हेपेटाइटिस डी होता है, इसमें डेथ हो जाती है। विच वन द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड विद फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द ड्रग? तो एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। ट्रांसमाइग्रेशन के अंदर क्या आता है? पीकेएम, ये भी एग्जाम में आया था। Neurophysiologist, while stimulating a nerve, is unable to generate action potential due to hypokalemia. हाइपोकैलीमिया की वजह से एक्साइटेशन नर्व की डिक्रीज हो जाती है। ग्राफ बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विन के ग्राफ कभी भी रिजेक्ट नहीं होते इवन विदाउट इम्यूनोसप्रेशन। ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? एस्ट्रोसाइट के प्रोसेसेस, ठीक है। और ब्लड ब्रेन बैरियर में कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं? कैपिलरी की एंडोथेलियम, टाइट जंक्शन और एस्ट्रोसाइट के फूड प्रोसेसेस। 37 5 ईयर्स आफ्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी कौन सी मेलिग्नेंसी हो जाती है? सबसे पहले वो हीम वाले सिस्टम्स को इफेक्ट करती है, ठीक है, लिम्फोप्रोलिफरेटिव। 10 ईयर्स के बाद स्किन में हो जाती है। 38 रीनल ट्रांसप्लांटेशन के अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट आप कौन सा करवाते हैं? हेला टाइपिंग एंड मैचिंग। 39 person after 2 weeks after transplant having everything normal but develop petechiae and desquamation likely cause उसकी क्या होती है? graft versus host disease, ठीक है। ये हमने नीचे वाले किए हुए हैं कि अगर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ क्या करवाती हैं? हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कॉज करवाती हैं, ठीक है। और एक्यूट रिजेक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है, दैट इज कॉज्ड बाय CD8 सेल्स, ठीक है। क्रॉनिक रिजेक्शन के अंदर टाइप 2 एंड टाइप 4 दोनों हाइपर सेंसिटिविटी आती है और कॉज क्या होती है? CD4 सेल्स। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट के अंदर भी टाइप 4 आ जाती है और इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी होगी, पेशेंट को डायरिया, जॉन्डिस एंड पीटेकिया। 40 a person sitting in a room with athlete other man, what former will have increase? अच्छा, एक एथलीट है और दूसरा एक नॉर्मल इंसान है, तो एथलीट के अंदर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, ठीक है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा ना, वरना एथलीट में तो ब्रेडिकार्डिया होता है ना। 41 कहते हैं आफ्टर मैराथन रेस ए पर्सन लॉस 2 लीटर ऑफ स्वेटिंग, ही ड्रिंक 2 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें जो नीचे वाली सीक्वेंस है ना, आप इसके ऊपर आ जाएं कि अगर एक बंदा है आफ्टर ड्रिंकिंग 2 लीटर ऑफ वाटर, तो नॉर्मली क्या होगा? सबसे पहले इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है ना, वो यही बनता है कि डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अगर ये आपको एंड वाली 2 लाइन्स आ जाती है ना जो सीक्वेंस भी है, तो इससे बहुत MCQ सॉल्व हो जाते हैं। सबको क्लियर है ना ये वाला MCQs? 42 कहते हैं कि इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज व्हाट विल इंक्रीज? क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है? एयरवे की रेजिस्टेंस। एक्लेजिया किस में डिफेक्ट आता है? माइंटारिक प्लेक्सिस में। कॉन्टेंट्स फ्रॉम सीकम टू आइलियम आर प्रिवेंटेड, कौन प्रिवेंट करता है? इलियोसिकल वेल। आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी ड्रेन हम कहाँ पे रखते हैं? राइट साइड पे सब हेपेटिक कंपार्टमेंट के अंदर, और पेंक्रियाटाइटिस में लेसर स्टेप में, और लेप्रोटमी में राइट कोलिक के अंदर।
और कोलिसिस्टेक्टमी में सब हेपेटिक स्पेस में। 42 मैन प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद अनयूजुअल फेशियल एक्सप्रेशन, हाफ साइड ऑफ द फेस वाज रेड, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग। कौन से सिंड्रोम है, डायग्नोज करें? हॉर्नर सिंड्रोम, वेरी गुड। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन डैमेज हो जाती है। 47 में द फॉलोइंग पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें हमारे पास इसका निमोनिया क्या किया था हमने, SLE। स्मॉल सेल के अंदर क्या क्या आता है, स्मोकिंग और एक्टोपिक ACTS मतलब कुशिंग सिंड्रोम और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम और SLE। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर क्या आता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है और इसमें पैराथायराइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम में आया हुआ था ऑप्शन में, PTHRP, ठीक है। और अगर एक्टोपिक थायराइड हो तो वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग्स। SIADS में ट्रू क्या होता है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बहुत कंसनट्रेटेड यूरिन होता है और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी क्या होती है SIADH के अंदर, डिक्रीज होती है, ठीक है। और सोडियम को क्या होता है इसमें, सोडियम हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके कॉजेज बताएं, 2-3 कॉजेज बताएं SIADH के। इसके कॉजेज याद हैं किसी को आपको? एक तो इसमें कोई ड्रग आ जाएगी, ट्यूमर आ जाएगा, हेड इंजरी आ जाएगी, ट्रोमा आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वास्कुलाइटिस किसके साथ एसोसिएटेड होता है, पॉलीआर्टराइटिस नोड्यूसा के साथ। और इसमें क्या आता है, फिब्रोनाइड नेक्रोसिस होती है। 50 MCU से 18-year-old male is brought to the hospital in an altered sensorium. He is taking slow, shallow breaths and his breath has a fruity smell. एक भी चीज़ में इसकी pH डिक्रीज है, यूरिनरी कीटोन्स रेज्ड है, मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस विल बी DKA। 51 ब्लो टू द हेड कॉज एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा के अंदर कौन सी आर्टरी होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। 52 ए न्यू बॉर्न इज ब्रॉड विद लंबरोसैकल स्वेलिंग कॉन्टेनिंग मेनिंजेस विदाउट न्यूरल टिश्यू। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसील। हर्निएशन कॉजेज लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रूट वैल्यू ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स, कौन सी होती है। अच्छा बेसिकली ना वो पूछना, ये ना थोड़ा गलत लिखा हुआ है लास्ट लाइन इसकी। बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि हर्निएशन कॉज लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स, जो आगे वाली इसकी लाइन है ना वो आप कट कर दें, ठीक है। सिर्फ वो एंकल रिफ्लेक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो एंकल रिफ्लेक्स में कौन सी होती है, एंकल रिफ्लेक्स की S1 होती है, ठीक है। अच्छा जो नी वाला होता है ना, उसके फ्लेक्सर्स वाला जो है ना, उसका डर्माटोम या मायोटोम डिफरेंट होता है और जो एक्सटेंशन के दौरान उसका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आई थिंक कल जब हमने एक्सटेंशन की किए थे तो उसके L3 और 4 थे। और इसका ना ये फर्स्ट एड के अंदर अगर आप देख, फर्स्ट एड कह रही हूँ, रफ़ी के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड वाला जो चैप्टर है वो 2 to 5 पेजेस का है। उसके अंदर एक मायोटोम वाला टेबल बना हुआ है, मैं अभी आपको ना इसके बाद सेंड कर देती हूँ, ठीक है, लेक्चर के बाद ग्रुप में। तो आप ग्रुप में मुझे चाहे मेंशन कर देना कि मायोटोम वाला टेबल ना मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड वाला चैप्टर है ना जो रफ़ी का, उसकी अगर आप टेबल ही खाली कर लें, वो इतना ईजी चैप्टर है, सिर्फ टेबल्स करने से आपके बहुत सारे MCQ सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक उसमें वो वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें सारे लेवल्स दिए हुए हैं कि ट्रेकिया बाइफर्केशन का लेवल कौन सा है, एओर्टा कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब सारी उसके ऊपर थोरेसिक लेवल दिए हुए हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी लेवल के ऊपर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या ओपनिंग और एग्जिट होता है, ठीक है। तो वो वाले टेबल आपने बहुत अच्छे से करने हैं। रफ़ी के ना बेसिकली आप ऐसे किया करें कि पॉइंट्स तो काफ़ी रिपीटेड होते हैं, जो रिपीटेड है उन्हें आपने कट कर लेना है, बस जो टेबल ही आपने बार बार रिवाइज करने हैं, ठीक है। और जो कोई न्यू पॉइंट आपने वो करना है, ठीक है। रिविजन्स जितनी आप मैक्सिमम करेंगे आपको उतना अच्छा सारे कॉन्सेप्ट ग्रिप अच्छी होगी, ठीक है। पढ़ा सब नहीं होता है, बस ग्रिप आपकी किसी टॉपिक पे वीक होती है, तो आपने कोशिश करनी है आपके सारे टॉपिक्स पे ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। और वो रिवाइज करने से आती है, चीज़ें सेम है, बस बार बार रिवाइज करना है आपने। 54 मैकेनिज्म ऑफ क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन इन द लेटर सेगमेंट इन द PCT कैसे होती है, पैसिवली ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अडीमा फ्लो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, अडीमा में कौन सा होता है, एक्सुडेट। 50 ए वुमेन कार्बंकल ऑन द बैक ऑफ हर नेक विच इज रिमूव बाय द सर्जन, वो टाइप ऑफ नेक्रोसिस। इन्फ्लेमेशन की बात की जा रही है, कार्बंकल के अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है और इन्फ्लेमेशन एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है।
ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर क्या चीज़ डिक्रीज होती है? FEV ओवर FVC. 58 16-year-old with 15-year history of diabetes, how to check long term glycemic index? क्या करवाते हैं? HbA1c उसकी करवा लेते हैं, 3 months के बाद रिपीट करवाते हैं. ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन. Which one of the following is an autosomal dominant disorder with tumor mutation? FAP, familial adenomatous polyposis. नर्व डैमेज ड्यूरिंग सबमैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी कौन सी होती है? मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. ठीक है. और इसमें अच्छा ठीक है बस. 61 कहते हैं कि फादर ब्रॉट हिज डॉटर डायग्नोज विद टाइफाइड और अब आप प्रोफाइलैक्सिस फादर को क्या देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 750 mg BD 4 वीक्स 1 मंथ के लिए दे देंगे. ठीक है. ड्रग यूज इन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में कौन से देते हैं? पेंसिलिन एंड क्लिथ्रोमाइसिन. विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं ये प्री पोटेंट होता है और जो स्ट्रेस रिफ्लेक्स होता है वो मोनोसाइनेप्टिक होता है. इन्वर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स या गोल्जी टेनन वो डाइसाइनेप्टिक होता है. ठीक है. 64 ए यंग मेल हैज एजोस्पर्मिया. एजोस्पर्मिया में बेसिकली क्या हो रहा है? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आप उसमें क्या करवाएंगे? FSH और LH का लेवल करवा लेंगे और साथ टेस्टोस्टेरोन भी करवा लेंगे. एमनियोसेंटेसिस कान बी डन 10 वीक से पहले आप नहीं कर सकते. 68-year-old male has copious amount of fluid in the left pleural cavity due to acute pleurisy. When you examine him, he sit up in the bed, trunk upright. Where would the fluid tend to accumulate? कहाँ पे accumulate हो जाता है? कोस्टो डायफ्रैगमेटिक रिसेस के अंदर. ठीक है. वर्टेब्रे कहाँ से डिराइव करते हैं? स्क्लेरोटॉम से. 68 आफ्टर RTA पेशेंट वाज ऑन मोटरसाइकिल फेल डाउन डैमेज टू द सिम्फिसिस प्यूबिस. स्ट्रक्चर कौन सा डैमेज होता है? लिवेटरी एनाई. Fibrocartilage is present in intervertebral disc, immovable joint separated by ligament and membrane. कौन से होते हैं? Synarthrosis. First manifestation of vitamin A deficiency कौन सी होती है? Night blindness is greater than keratomalacia. 72 which one of the following is the last to appear normal in the blood after hemorrhage? तो सबसे पहले last to appear सबसे end में कौन सी appear होते हैं? Red blood cells. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का जो जीन होता है 10 to 15% कौन सा बैक्टीरिया कॉज करवाता है? स्टेफ ऑरियस. डुशेनिया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बेसिकली एक्स क्रोमोसोम का डिफेक्ट आता है. GLP-1 एगोनिस्ट और एंटी डायबिटिक इसकी क्लास के अंदर कौन सी आती है? एग्जाम्पल एक्जिनाडाइड. फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस एंड ट्यूमर सेल्स ऑफ नेचुरल किलर सेल्स. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्टेन क्लारा सेल्स और ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकस के कौन से सेल्स होते हैं उसके ऊपर? ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स पे गॉबलेट सेल्स होते हैं. ठीक है. ए पेशेंट हैज pertussis for many days on histology on respiratory tree. Which one of the following will be there? वहाँ loss of cilia and respiratory tree. Prime flexor of neck कौन सा होता है? sternocleidomastoid then serratus anterior. राइट ब्रोंकियल आर्टरी कहाँ से राइज होती है? राइट साइड के थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से. ड्रग ऑफ चॉइस इन 49-year-old मेल पेशेंट विद हाइपरटेंशन एंड डिस्निया इस कौन सी देते हैं? उसमें हाइपरटेंशन के साथ डिस्नी आप उसे बीटा ब्लॉकर देंगे मेटोप्रोलोल. कल हमने किया था हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक देन ड्रग विल बी ऑप्शन कौन सा आएगा? अल्फा ऑप्शन कैप्टोप्रिल. एपिनेफ्रिन गिवन स्लोली क्या करवाता है? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करवाता है. पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक रिलीज क्या करवाता है? नोर एपिनेफ्रिन. मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय पैची डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन. ग्लोमेरुलर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ एफ्रेंट एंड इफ्रेंट आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस. ESR इंक्रीज कब होता है? जब एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाए. ठीक है. A group of friends went to restaurant, eat chicken and fried rice. At midnight develop food poisoning. तो causative agent Bacillus cereus. इसका causative agent क्या है? Fried rice खाने की वजह से. The gland atrophy in the stomach of an alcoholic and smoker would result in anemia. Atrophic gastritis या pernicious anemia हो गया. Cell wall of gram positive cause septic shock. Which component of the cell wall will cause shock? तो ग्राम पॉजिटिव में कौन शॉक करवाता है? एक्सोटॉक्सिन एंड पेप्टिडोग्लाइकेन. ठीक है. और ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होते हैं? एंडोटॉक्सिन होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट मेनली किस फॉर्म में करती है? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में. ए पेशेंट हैज कंप्लेन ऑफ हेडेक ड्यू टू रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर. CSF किसके एग्जांपल में आता है? ट्रांससेलुलर फ्लूइड में. मेन ब्लड वेसल्स की लोकेशन कौन सी होती है? सबरेक्नोइड स्पेस. नी रिफ्लेक्स. अच्छा यहाँ आगे अभी कोई क्वेश्चन कर रहा था. ठीक है. नी रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू कितनी होती है? L4. ठीक है. L4 और एंकल की S1. ए बॉय हैड ए कार एक्सीडेंट आफ्टर
which he is bedridden, he developed DVT, he came to ER with chest pain and dyspnea. What will be the finding? कौन सी आती है? Ventilation perfusion mismatch. A patient has hyperreflexia and positive Babinski sign. This is due to brain infarct and CVA hemorrhage. Increased ventricular stretch lead to क्या करवाते हैं? Increase actin and myosin binding. सिस्टोलिक मर्मर इन एओटिक एरिया रैश या प्लेट्यू है, तो ये सारी किसके एग्जांपल में आ जाएंगे? एओटिक स्टेनोसिस में. विच हार्मोन मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कौन करवाता है? अल्डोस्टेरोन. ठीक है. और एडीएच क्या करवाता है? एडीएच का फंक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स तो सारे आ जाते हैं. अल्डो ऑस्मोलैरिटी. वेरी गुड. 99 विच लिम्फोइड. अच्छा ये भी जो है ना रीनल वाला जो टेबल दिया हुआ है ना रफ़ी के अंदर, उसमें ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब सिंगल लाइन ही दी हुई है. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट्स को कौन मेंटेन करता है? अल्डोस्टेरोन. और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी और सीरम ऑस्मोलैरिटी कौन कंट्रोल करा होता है? एडीएच मेंटेन करा होता है. सॉरी. ठीक है. विच लिम्फॉइड ऑर्गन हैज पैराक्राइन एक्शन किसका होता है? थाइमस का. अल्डोस्टेरोन एक्ट किसके ऊपर एक्ट करती है? सीसीटी पे, पीसीटी देन डीसीटी देन सीडी. और बिल्कुल इसके ऑपोजिट एडीएच आ जाएगा. रैम स्लीप का जो रैम स्लीप डेप्रिवेशन इज ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन डिप्रेशन. ठीक है. यहाँ तक ये सारे एमसीक्यूज क्लियर हैं. आई थिंक ये इजी हैं, सारे रिपीटेड ही हैं, कोई न्यू एज कॉन्सेप्ट नहीं था इनमें. चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर हम अपना डबल ए और फर्स्ट एड की तरफ चलते हैं. वॉन जर्की डिजीज में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? वॉन जर्की डिजीज. वॉन जर्की डिजीज में G6P. Finger injury which activate kinin, also coagulation by which factor? Histamine, Hagman factor, factor 7 and 5. ठीक है. वेरी गुड. Content from cecum to ileum are prevented by ileocecal valve, ileocecal sphincter, ileocecal pump, pyloric sphincter. In phobia there is dark adaptation, high visual acuity, low visual acuity, higher number of in retina. ठीक है. Fourth heart sound is due to which one of the following? Rapid ejection, rapid filling, isovolumetric relaxation, atrial depolarization, slow filling. आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी ड्रेन हम कहाँ रखते हैं? लेफ्ट सबफ्रेनिक कंपार्टमेंट, राइट पैराकोलिक गटर, राइट सबहेपेटिक कंपार्टमेंट, राइट सबफ्रेनिक कंपार्टमेंट. ठीक है. और पैंक्रियाटाइटिस का ड्रेन कहाँ रखते हैं? लेस्टर सैक में. लेप्रोटमी का ड्रेन कहाँ रखते हैं? लेप्रोटमी का लेप्रोटमी वाला ड्रेन कहाँ रखेंगे? राइट कोलिक के अंदर. ठीक है. राइट कोलिक. अच्छा. नेक्स्ट. पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक रिलीज, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, गाबा, हिस्टामिन. नोरेपिनेफ्रिन. मल्टीपल स्क्लेरोसिस is characterized by lewy body patchy demyelination of neuron, axonal neuropathy, neuronal hyperplasia. Prime flexor of neck is sclene medius, trapezius, sternocleidomastoid, serratus anterior. Superior cerebellar peduncle contain which tract? Dorsal spinocerebellar, ventral spinocerebellar, pontocerebellar, olivocerebellar. ठीक है. वेरी गुड. और मिडल सेरिब्रल पेडंकल के साथ कौन सा ट्रैक होता है? मिडल के साथ पोंटो. वेरी गुड. ड्रग यूज्ड इन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इज सल्फोनामाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन एंड क्लिथ्रोमाइसिन, सेफोटेक्साइम. चार्ली. Increased ESR is due to increased plasma protein, decreased albumin, Rolex formation, increased fibrinogen, decreased temperature. सेल वॉल ऑफ पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव के अंदर सेप्टिक शॉक को क्यों हो रहा है? पेप्टाइडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड, एंडोटॉक्सिन, फॉस्फोलिपिड, ए कैप्सूल प्रोटीन. फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज जॉन्डिस, केरेटोमलेशिया, प्लूराइटिस, वस्कुलराइजेशन. नाइट ब्लाइंडनेस इज ग्रेटर देन केरेटोमलेशिया. Fibrocartilage is present in primary cartilaginous joint, larynx, intervertebral disc, epiglottis, amorphous ground substance. Fibrocartilage. ठीक है. Which one of the following is last to appear normal in the blood after hemorrhage? Hematocrit, hemoglobin, red blood cell, reticulocytes. REM sleep deprivation is due to personality change, Alzheimer's symptom, anxiety, improvement in depression.
ठीक है, चले अब नेक्स्ट कल आपने 7 वाला प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इसके एमसीक्यूज ऑलमोस्ट थोड़े से ज़्यादा हैं, 160 तक हैं। ठीक है, और 8 में कितने हैं? 8 में भी थोड़े से ज़्यादा हैं, 8 में 162 हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह कल हम लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह हमारी परसों तक इंशाल्लाह इसकी 17 ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आज रीनल की पैथोलॉजी करनी है। चलें डबल एस रिवाइज करते हैं पहले। मोस्ट कॉमन नेफ्राइटिस इन एडल्ट इज, कौन सी डिजीज़ करवाती है नेफ्राइटिस एडल्ट्स में? ठीक है, और बच्चों में इन्फेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सी होगी? और अगर हम नेफ्रोटिक की बात करें, मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक इन एडल्ट्स विल बी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडल्ट्स में कॉमन कौन सी? वेरी गुड। और इन्फेंट बच्चों में कौन सी आएगी नेफ्रोटिक? मिनिमल चेंज। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायलिसिस इज हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। ट्यूमर इज ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन इन इन्फेंसी, बच्चों में कौन सा होता है? एम्ब्रियोनिक ओरिजिन वाला ट्यूमर। नेफ्रोब्लास्टोमा को आपने चूज करना है। ठीक है, स्मेल ऑफ बर्न्ट यूरिन इज प्रेजेंट इन, किस डिजीज में होता है? बायोकेम का सिनेरियो है ये, मेपल सिरप। इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी विल बी इंक्रीज और डिक्रीज? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज में इंक्रीज हो जाएगी। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होती है, सॉरी क्या चीज़ कम होती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा? कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड में? सोडियम, पोटाशियम, KCl। और इक्वल टू प्लाज्मा कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल होते हैं प्लाज्मा के? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अच्छा, ब्लैडर कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर आप बताएं सीक्वेंस वाइज। ब्लैडर कार्सिनोमा या ट्रांजिशनल एपिथेलियम का कार्सिनोमा? स्मोकिंग ग्रेटर देन, स्मोकिंग के बाद क्या आएगा? अमाइंस, देन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर, इसमें क्या क्या सीक्वेंस आ जाएगी और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन कौन कॉज करवाता है? ऑर्गेनिज्म का नेम बताएं। ठीक है, ये अच्छा आप बताएं कि मेलिग्नेंसी के अंदर फ्लूइड कैसा होता है, ट्रांसयूरेट होता है या एक्सयूरेट होता है? और सिरोसिस के अंदर, सिरोसिस के अंदर ट्रांसयूरेट होता है। अच्छा, आपने अब स्नैरियो बताती हूँ, आपने डायग्नोसिस बताना है। फ्लैंक पेन हो रही है, हीमोचूरिया है, हाइपरटेंशन है, यूरिनरी इन्फार्क्ट है, एसोसिएटेड कर रहा है बेरी एन्यूरिज्म के साथ, तो डायग्नोसिस क्या होगा? मेलिग्नेंसी में एक्सुडेट होगा। ठीक है, मेलिग्नेंसी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के अंदर एक्सुडेट होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका डायग्नोसिस क्या है? एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अच्छा, अब हम बात करते हैं CKD के अंदर विटामिन D का लेवल ज़्यादा होता है या कम होता है? डिक्रीज होता है। HIV का इन्फेक्शन कौन से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है? HIV का, सिकल सेल का, हीरोइन यूज, ओबेसिटी एंड इंटरफेरोन। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द राइट आंसर। और हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, SLE, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस विद सब एपिथेलियल डेपोजिट्स, इट्स मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। ठीक है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन स्प्लिटिंग हो रही है, हेपेटाइटिस B और C के साथ एसोसिएशन आ रही है, देन कौन सी नेफ्रिटिक सिंड्रोम होगी? नेफ्रिटिक मेम्ब्रेनस, वेरी गुड।
अच्छा, सब एपिथेलियल हम्प्स आ रहे हैं और स्टारी स्काई अपीयरेंस आ रही है, लंपी बम्पी अपीयरेंस आ रही है, आईजीजी आईजीएम प्रेजेंट है, C3 की डेपोजिशन हो रही है, इट्स पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप 2, 3 या 4 होती है, 3 होती है। और रैपिडली प्रोग्रेसिव क्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कौन सी टाइप होती है, 2, 3 या 4? 2, ठीक है। अच्छा, सिस्टीन का जो स्टोन बनता है उसमें कौन से 4 अमाइनो एसिड आते हैं जिनकी डिफेक्ट आ रहा होता है? कोला, कोला के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? C4, सिस्टीन, O4, ऑर्निथिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। आई थिंक ये वाली रीनल की ना फिजियोलॉजी की सिर्फ मुश्किल है, पैथोलॉजी रीनल की बहुत इजी है, वो आप लोग कर ही लेते हैं क्योंकि नेफ्रिटिक नेफ्रोटिक हमने रिसेंटली फाइनल ईयर में किया होता है ना, तो इसकी फिजियोलॉजी ही बेसिकली तंग कर रही होती है पेपर में भी। तो उसकी कोशिश करेंगे टाइम निकाल के आप लोग ना AA के MCQs भी रिवाइज कर लें रीनल फिजियोलॉजी के। अच्छा, नेफ्रिटिक तो हमारी ये दोनों हो गई हैं वहाँ रिवाइज अभी उस टेबल के अकॉर्डिंग। अच्छा, आप बताएं कि रेडियो लूसेंट स्टोन किस में होते हैं? कौन से किडनी स्टोन रेडियो लूसेंट होते हैं? यूरिक एसिड, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ। पेशेंट प्रेजेंट करे फीवर के साथ, फ्लैंक पेन के साथ, कोस्ट ओवर टेबल एंगल के ऊपर टेंडरनेस है, नोजिया एंड वोमिटिंग है, कॉज उसकी थी UTI और उसे पेन्स हो रही हैं इस तरह की, तो डायग्नोसिस क्या होगा आपका? एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, वेरी गुड। अगर पेशेंट को प्रेजेंट करता है सुप्राप्यूबिक पेन के साथ, डिस्यूरिया के साथ, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी के साथ, अर्जेंसी के साथ और उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, तो कौन सा इन्फेक्शन होगा? एक्यूट सिस्टाइटिस। एक्यूट सिस्टाइटिस का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म बताएं कौन सा होता है? ई कोलाई। अच्छा, ये रीनल फेलियर के अंदर इसमें कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, इसमें जो मैड हंगर बनता है निमोनिक, इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें आ जाती हैं ये आपने बताना है। मैड हंगर निमोनिक रिवाइज करते हैं हम लोग। M फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, A फॉर बस A फॉर कुछ भी नहीं, A फॉर एसिडोसिस है, D फॉर डिस्लिपिडीमिया यानी कि टैक्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और H फॉर हाइपोटाशियम हाइपरकेलीमिया, U फॉर यूरीमिया, N फॉर सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन हो जाती है, ठीक है। इसमें बेसिकली हार्ट फेलियर आ जाता है, पल्मोनरी एडिमा एंड हाइपरटेंशन आ जाएगी, ठीक है। G फॉर ग्रोथ रिटार्डेशन या डेवलपमेंटल डिले आ जाएगा, एंड E फॉर एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाएगी, और R फॉर रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक ट्राइएड देती हूँ, आपने इससे डायग्नोज करना है। वो ट्राइएड है, फ्लैंक पेन है पेशेंट को, पाल्पेबल मैस है, हीमाचूरिया है, ट्राइएड बन रहा है बस। वेरी गुड। इसका बस आपने 3 बातें याद रखनी है, जब ये ट्राइएड पॉजिटिव आए तो आपका आंसर होगा रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, बस इसमें बेसिकली मेन हमने रिवाइज कर लिया, अब इसके ये इंपॉर्टेंट है रीनल की जो फार्मा है ना। अच्छा, ये बताएं कि मैनिटोल नेफ्रॉन के किस पार्ट के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है फार्मा के अंदर? PCT के ऊपर और थोड़ा सा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर भी एक्ट कर रही होती है, ठीक है। और थायाजाइड डायूरेटिक कहाँ एक्ट करते हैं? DCT पे। अच्छा, आप लोग साइड इफ़ेक्ट बताएं लूप डायूरेटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स। लूप डायूरेटिक के साइड इफ़ेक्ट याद है आप लोगों को? ऑटोटॉक्सिसिटी आ जाएगी, पोटाशियम के लेवल को क्या होगा? हाइपोकैलीमिया, मैग्नीशियम का लेवल को क्या होगा?
हाइपोमैग्नीसीमिया डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी या अल्कलोसिस होगी? अल्कलोसिस होगी और नेफ्राइटिस होगा और गाउट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पोटाशियम कैल्शियम का लेवल इतना इन्होंने नहीं बताया हुआ, सिर्फ मेन आपने याद रखना है कि हाइपोकैलीमिया हो जाता है और हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा वैसे हाइपोकैल्सीमिया भी होता है क्योंकि ये सारे कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, क्लोराइड को, सोडियम को सबको एक्सक्रीट करवा देती है, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया भी होता है वैसे, ठीक है। तीनों सबको हाइपोक्लोरीमिया भी हो जाएगा, सारी चीज़ों को एक्सक्रीट करवा देती है वो। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताएंगे हाइपरकैलीमिया किसका साइड इफेक्ट है? कौन सी ऐसे डाययूरेटिक देते हैं जिसके साइड इफेक्ट में हाइपरकैलीमिया आ जाता है? हाइपरकैलीमिया स्पाइरोनोलैक्टोन पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, ठीक है, क्योंकि वो पोटाशियम को एक्सक्रीट नहीं करेंगी। एंजियोएडिमा इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच क्लास? एस इनहिबिटर्स, वेरी गुड। इसमें सबसे पहले मोस्ट कॉमन पेशेंट प्रेजेंट करेगा कफ के साथ, कफ के साथ, ठीक है। और एंड स्टेज में, लास्ट स्टेज में क्या करवा देगा? रीनल फेलियर करवा देगा, ठीक है। और इसकी इंडिकेशन बताएं, एस इनहिबिटर्स आप देते कब हैं? एस इनहिबिटर्स आप कब देते हैं इंडिकेशन? हाइपरटेंशन में और डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर की टाइप नेम बताएं, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। एलिस्कारिन, ठीक है। चलें ठीक है, आई थिंक हमारी रीनल यहाँ तक रिवाइज हो गई है। और रीनल के अंदर कोई और इशू हो जो आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हो? यहाँ तो कोई इशू किसी को भी क्लियर है? चलें, अपनी रिविजन्स बहुत अच्छे से करें, मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी को दें, ठीक है। और कहीं कोई इशू आता है या कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बाकी कल को करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसके का।